यार यूजुअली विवेक आते हैं फेयर यूज पॉलिसी में, लेकिन अगेन ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं फकिंग एमटीवी एंड दीज फकर्स, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज टू फाइट अगेंस्ट देम इन अ लीगल बैटल. इट्स अ वे टू फक द क्रिएटर्स बिकॉज अगेन YouTube would rather be with the big brands rather than individual creators, right? अब मेरे पे आज कॉपीराइट स्ट्राइक आई, आज से 6 महीने के पीरियड वो स्ट्राइक रहेगी इवन इफ आई डिलीट दैट पर्टिकुलर वीडियो. तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे अगर 2 स्ट्राइक्स और आ जाते हैं, चैनल इज फकिंग डिलीटेड ऑटोमेटिकली. बस थिंग यू कैन डू, मेक एज मच नॉइज एज यू कैन अबाउट इट. तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग जगहों पे जितनी ज्यादा ऑडियंस घेर सको उतनी घेर लो by making noise about it, because this is the kind of a topic that people would care about. Absolutely right about all of those things. This is horrendous when the government does anything like this. This is horrendous when any company does anything like this. This is horrendous when any person does anything like this, and it should never be supported. The issue is people are ideologically inclined, but yeah, I definitely support Rohan in every platform he makes content in, I guess. I don't think I follow him on Instagram. I'll start doing that. Generally, I talk about Shitaba. I talk about, this is not that serious. That is not that serious. Yada, yada, yada. No, this is serious. This is fucking serious. And I'm not saying that it's serious because it's about a YouTube thing. या फिर मैं react stream कर रहा हूँ. Fuck my channel. If it gets deleted, I don't care. This, fuck it. I like this guy. I saw one of his videos. And apparently his channel is getting deleted. श्वेता आपको वो देख के मुझे लग रहा है. So, parents बनाऊंगा in base trap. All right. So I just want to see what is happening. Rohan, his name is, if I remember correctly, मुझे Kariappa last name याद नहीं रहता. रोहन करियप्पा यूट्यूबर है जो predominantly तुम्हारे DHH देसी हिप हॉप के बारे में बात करता है, and he's also a friend of mine. काफी decent बंदा है, मेरे को काफी पसंद है भाई. I really like the guy. Recently उसके चैनल पे 3-4 दिन पहले तुम्हारे MTV हसल ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है 50 कॉपीराइट स्ट्राइक्स. तो जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे देख रहे हैं, एक पोएम है बहुत famous. First they came for the communists. I sat quiet because I'm not a communist. Then they came for the socialists. I sat quiet because I'm not a socialist. Then they came for the unionists. I did not speak out because I was not a unionist. Then they came for this person. I did not speak out because I'm not that person. Then they came for me. And there was nobody left to speak out for me. ये as a YouTuber, at least मैं कहूँगा इंडिया में, मुझे बाहर के देशों का नहीं पता, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा relevant है. कंपनियों से, कॉर्पोरेशन से, इवन इंडिविजुअल से, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनको पता है कि भाई हम पैसे से दबा सकते हैं, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स, टैग कॉपीराइट स्ट्राइक्स का हमेशा डर रहेगा. आई अंडरस्टैंड कि सारे यूट्यूबर एक दूसरे से कोई कनेक्टेड नहीं है, हम कोई दोस्त नहीं है, हम कहने को मतलब acquaintances हैं, एक दूसरे का वर्क देखा हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है एक मात्र मोमेंट है जहाँ पे आंख बंद करके सबको बोलना चाहिए, सबको खड़ा होना चाहिए. इवन तो एक यूट्यूबर पे टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट एक्चुअली हम सब पे कहता है. यहाँ पे बस नाम रिप्लेस. He's absolutely right. Without a doubt, he's right. It's not even about YouTube or anything like that. It's also about policy in the government. If there is anything जो कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ला रही है जिस पॉलिसी से तुम फंडामेंटली एट इट्स कोर डिसएग्री करते हो, यू शुड ऑलवेज टॉक अगेंस्ट इट, इवन दो उस पॉलिसी से उस टाइम पर तुम्हारा फायदा हो रहा है, तुम्हारी आइडियोलॉजिकल फायदा हो रहा है. Because you never know when the same policy comes back to bite you in the ass, and it will happen because that's how the fucking wheel of time works. So, yeah, that's true. Absolutely, everyone should be talking about this without a doubt. बात करने से क्या ही होगा, गवर्नमेंट चूतिया काट देती उसके बाद भी. यार, you're gonna do everything you can, right? As much as you can. प्लेस करने के जरिए हम भी अप्लाई होते हैं. तुम बात करो किसी भी कंटेंट का, कैरी मिनाटी से स्टार्ट करते हो, सबसे बड़ा लेट्स यूट्यूबर है. कैरी मिनाटी ने कितनी सारी क्लिप्स यूज करी हैं, तो उसका पूरा करियर है क्या? रिएक्शन कंटेंट ही है. ही इज रिएक्टिंग टू समथिंग एंड उसके ऊपर अपना रोस्ट लिखा है. ना इमेजिन करो जितने भी लोग उसने क्लिप्स यूज करी हैं रिएक्शन अपने कंटेंट बनाने के लिए, अगर उसका कॉपीराइट मारते हैं, अब यही सेम लॉजिक तुम उठा के कोई भी यूट्यूबर क्रिएटर सोचो, धागे से कंटेंट उठा लो, लक्ष्य चौधरी का कंटेंट उठा लो, ये क्लिप्स वाली चीज राठी पे भी अप्लाई होती है और मोहम्मद मंगल पे भी अप्लाई होती है. लगता है ये लोग क्लिप्स यूज नहीं करते, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं बहुत लंबी, बट इन स्क्रिप्ट में ये क्लिप्स फोटोज चीजें दिखाते हैं. 3 स्ट्राइक्स में चैनल डिलीट हो जाता है. यहाँ पे इस इंसान के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो इस इंसान को अब कोर्ट पे जाना पड़ेगा, बैठ के केस करना पड़ेगा, जो कितना प्रोलॉन्ग बैटल होगी पहली चीज ये, या फिर ये सिंपल कॉपीराइट स्ट्राइक्स ये जो कंपनी है ये वापस ले ले. एक मास कंसल्टेड प्लस आई थिंक अगर तुम्हारा चैनल डिलीट हो रहा है, आई डोंट थिंक यू कैन इवन गेट इट बैक थ्रू यूट्यूब. Even if you win the case, I don't think you can get the channel back. पावरफुल कॉर्पोरेशन का एफर्ट आपको दिख रहा है कि इंसान को ऑब्लिटरेट करते हुए. तो यहाँ पे 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. Sorry to cut him off again, but the best thing you can do अगर तुम्हारा इस चीज़ पे आ चुका है, the best thing you can do, make as much noise as you can about it. तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग जगहों पे जितनी ज़्यादा ऑडियंस घेर सको उतनी घेर लो by making noise about it, because this is the kind of a topic that people would care about. So I hope Rohan is doing that much, even though it didn't land on my feed that much, but I hope he's doing a lot of that. I don't know, do you guys know about it? But yeah, I definitely support Rohan in every platform he makes content in, I guess. I don't think I follow him on Instagram. I'll start doing that. But yeah, this is fucked up. पहली एम्पैथी, दूसरा ऑल्सो सेल्फ प्रिजर्वेशन. एम्पैथी हम सब ये कर रहे हैं, हम सबको वो एक्सपीरियंस पता है वीडियोस डालने का, क्रिएटर होने का, और दूसरा आता है सेल्फ प्रिजर्वेशन का. टू मेक श्योर कभी ना हो किसी के साथ भी. आंसर है यूनिटी. लोगों से एक कंसल्टेड एफर्ट. And Nilesh, what the fuck do you mean by a closeted trans guy? Well, I don't mind. यूएसए के अंदर ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये फेयर यूज के अंदर आता है. ये लॉ तुम्हारा एस3 का तुम्हारा आई थिंक 10 साल पहले कोर्ट केस हुआ था, उसमें जब ये जीत गया ये केस, तो उनका सेट हो गया था फेयर यूज. यानी कि अगर आप किसी क्लिप यूज करो लेकिन उसको ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट यूज करो, यानी आप उससे बात करो With the fucking parkour guy, there was this guy who was making shitty parkour videos. ठीक है, I don't know if they were funny. वो funny लगती थी, but I always presumed कि they were intentionally funny, but apparently it was not intentionally funny, unintentionally funny थी वो videos. S3 ने react करा, उसको cringe बोला, and the guy started taking them down, and there was a legal battle and they won, and that was a big landmark or checkpoint in the fair use battle बाहर के countries में. यार यूजुअली विवेक आते हैं फेयर यूज पॉलिसी में, लेकिन अगेन ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं फकिंग एमटीवी एंड दीज फकर्स, like we don't have the resources to fight against them in a legal battle, right?
they can throw more and more money into the legal case. We cannot. Plus, once your channel is deleted, everything that you have built is fucked up. क्योंकि हायरार्किकल सिस्टम्स में एग्जिस्ट करता है बहुत ज्यादा। आप सिंपल ऑफिस में जाओगे, हो सकता है आपका बॉस भी ऐसा ही हो सकता है आपके सुपीरियर्स ऐसा हो सकता है भाई आप किसी टीम में काम कर रहे हो, आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फीडबैक देना है, वो नहीं सुन सकते और उस सुनने के बाद हुआ कि आपको इनडायरेक्टली आपके अगेंस्ट हो चुकी पूरी टीम, आपको मजबूरन वो टीम या कंपनी छोड़नी पड़ी या फिर आपको निकाल देगा क्योंकि भाई ये तो एक्नॉलेज कर नहीं सकते वो कि वो किल्स आ गए। He's absolutely right. He's absolutely right. I mean, आज मैं अपने सिद्धू के साथ बैठा था, my friend. You guys know सिद्धू. मैं सिद्धू के साथ बैठा था, हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे, हम लोग काम कर रहे थे, and he was using his PC through his Mac. तो उसका PC घर पे पड़ा था, वो Chrome के थ्रू somehow he was using his PC through his Mac. ठीक है, DaVinci Resolve पे वो वीडियो एडिट कर रहा था, and he fucked up a little thing. तो उसने बेसिकली जो नई फाइल रेंडर करी वो ही पुरानी फाइल के सेम नेम से थी, तो वो गलती से रिप्लेस हो गई, राइट? एंड रिजॉल्व जस्ट fucking did it. रिजॉल्व आस्ट के रिप्लेस करनी है, उसने जल्दी में कर दिया कि हाँ रिप्लेस करनी है. Guess what? उसकी फाइल डिलीट नहीं करनी थी, एंड he was like fuck, I did a really stupid thing. आई एम नॉट किडिंग भाई. ये कोई अगर हायर लेवल का बंदा किसी लोअर लेवल के बंदे को बोलता है हाँ कर दे, अरे जल्दी करना, करे यार, एंड वो इसी तरीके से रिप्लेस होता है. उस एम्प्लॉय की, उस सबॉर्डिनेट की, उसे कान फाड़ देता है वो बंदा. तो झूठ यार, तुझे खुद नहीं पता ये फाइल चाहिए, यूज़ करनी है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें करनी है. इवन दो द पर्सन हायर ऑन द हायरार्की एक्सप्लिसिटली सेड कि भाई कर दे, उसके बाद भी दैट्स द होल पॉइंट कि अगर तुम्हारे साथ में कोई हायरार्किकली लोअर है, उसी गान फाड़ सकते हो तुम किसी बात पे, बिकॉज ऑल ऑफ दीज पीपल आर फकिंग इनसिक्योर, नोबडी लाइक्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड पीपल आर टू इगोइस्टिक, एंड मे बी आई एम ऑल्सो टू रिटार्डेड बिकॉज आई सी इनसिक्योरिटी फकिंग एवरीवेयर, एंड डेफिनेटली आई से विद इन माई सेल्फ एज वेल, बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे मेरे अपने आप को लेकर, बट इतनी ज़्यादा मुझे दिखती है ना, आई एम नॉट फकिंग किडिंग. पीपल आर ऑलवेज compensating, overcompensating for different shit, and you can see it, and it's fucking sad to see it everywhere. Like Nilesh bro, GTA 5 का walkthrough दो. GTA 5 का walkthrough I think सिद्धू ले सकता है. He's never played it. I fight battles for others, but lay the weapon down for my own battles. Yeah, you dickhead. You dickhead. I see what you're doing here. अच्छा, Vivek also sees what you're doing here. प्रखर की याद आ गई लगता है श्वेताब को. अच्छा हाँ, that also fucking happened. Wait, हाँ, of course, that's what Joffrey was talking about. किलस गए भाई, वो तुम्हारा वैलिड फीडबैक को टॉलरेट नहीं कर पाए क्योंकि भाई तानाशाह बुद्धि है ना इंसान की, हम तो इतने काबिल हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कोई करेक्शन का स्कोप हो सकता है. मेरी विनती हर किसी यूट्यूबर से है जो भी एग्जिस्ट करता है इस वक्त आज कल में, सोशल मीडिया में हो पाए, अपने सारे सोशल मीडिया पे वीडियो हो पाए तो बहुत बढ़िया बात है. वीडियो भी नहीं है एटलीस्ट ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज पे, हर जगह पोस्ट करो यार. ट्विटर पे, यूट्यूब को टैग करो, जितने लोग भी देख रहे हैं हो पाए 5 मिनट लगेगा, क्योंकि भाई ये तो अन्याय है ना तुम्हारे कॉपीराइट सिस्टम. I think Shwetab is absolutely right. I feel like I want to make a video out of it too because मैंने एक दो stream की clips डाली हैं. I don't think I have provided any of the content or context which would make it worth a stream clip. I don't know. What do you guys think? Should I upload it? इतना दुरुपयोग हो रहा है मतलब I think the title and the shit matters, right? What he's saying. हद नहीं है, तो इसको तो आपको खुद ही इंटरनली रिजॉल्व करना चाहिए. इससे आवाज उठाओ, जितने लोग भी कर सकते हैं आवाज उठाओ. जो लोग काम कर रहे हैं जिंदगी में मैं समझ सकता हूं, मैं नहीं कह रहा भाई कुछ मत करो आज के दिन, अपना काम करो पूरे दिन तुम, लेकिन 10 मिनट जब खाली हो, सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा टाइम मत निकालना. एक ट्वीट डाल दो, सिंपल एक ट्वीट डाल दो, अगर ट्विटर पर नहीं हो तो छोड़ो. इसमें असली आवाज यूट्यूब पे लगेगी. बाय यूट्यूब आई मीन इन्फ्लुएंसर्स. फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स को वंस एंड फॉर ऑल हम लोग को रिजॉल्व करना है. ये तो बनता ही बनता है और बहुत स्ट्रेंथ से बनता है. वरना भाई आज ये एग्जांपल कल कोई भी कंपनी कर सकती है, कोई भी कंपनी, और बहुत कंपनियां हैं, बहुत कॉर्पोरेशंस. आप ट्रेलर्स सुनते रहते हो, वो लोग रोते रहते हैं बैठ के. Good night, Clem. Thanks for joining the stream. Take care. और जितने भी पिक्चर के एनालिसिस वीडियो बनाते हैं उनका सुनते रहते हो कि भाई हमारे पास आ गया स्ट्राइक, हमारे पास आ गया स्ट्राइक, ये ओपिनियन पसंद नहीं आया तो वीडियो टेक डाउन की आ गई. ये बहुत बड़ा चलन है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. इस पे प्रॉपर लड़ाई करनी पड़ेगी. ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है, ये वैल्यूज की बात हो रही है, ये पॉपुलर की बात हो रही है, हाउ टू थिंक की बात है. बहुत सारे लोग होंगे सोचते हैं कि मेरा से इससे क्या पड़ता है. इससे हाउ टू थिंक शेप होता है, क्योंकि हाउ टू थिंक पे आप जितनी ज्यादा रोक टोक लगाते रहोगे, जितना ज्यादा लिमिट करते रहोगे, तो हम फिर कुल मिला के वही चीज बोलने में सीमित रह जाएंगे जो कि एस्टैब्लिश चीजें सुनना चाहती हैं, इंस्टीट्यूशन सुनना चाहते हैं. आप फिर व्हाट टू थिंक का प्रोपेगेंडा सुनोगे जीवन भर में, आपको क्रिटिकल थिंकिंग का सीन नहीं मिलेगा. आपको चाहते हैं लोग मूर्ख, नम कस्टमर्स, कंज्यूमर्स रहे आप, थिंकिंग पॉपुलेशन बने नहीं. तो अगर आप थिंकिंग पॉपुलेशन है तो आपको थिंकिंग के लिए लड़ना पड़ेगा. कोई इंसान अगर थिंकिंग कर रहा है, चाहे इंफीरियर हो चाहे सुपीरियर हो, थिंकिंग हमेशा साइड लो. थिंकिंग कर रहा है ना, रॉबरी तो नहीं कर रहा ना, वो लॉ तो नहीं तोड़ रहा ना, छेड़छाड़ी तो नहीं कर रहा ना, थिंकिंग कर रहा है कोई. थिंकिंग को आप रोक दोगे तो 1984 वाली बात होगी ना, थॉट क्राइम कर रहे हैं हम. तेरा लाइवलीहुड खत्म कर, तेरे दिमाग में थॉट आया है. He is absolutely right about it. I think if I tried, I probably cannot find anything wrong with this video. He's absolutely right. Or generally, I talk about Shwetab. I talk about, this is not that serious. That is not that serious. Yada, yada, yada. No, this is serious. This is fucking serious. And I'm not saying that it's serious because it's about a YouTube thing. या फिर मैं react stream कर रहा हूँ. Fuck my channel. If it gets deleted, I don't care. This fuck it, right? I know. The permanent viewers of the stream, they're on Discord. ठीक है? And... I'm good. If I'm streaming, again, I just like streaming. That's why I'm streaming. ठीक है, अभी मेरा ये livelihood इस पे dependent नहीं है, so I don't care that much. However, when he is connecting it to the 1984, when he is connecting it to thought crime, when he is connecting it to freedom of speech equals freedom of thought, he's absolutely right about all of those things. This is horrendous. When the government does anything like this is horrendous. When any company does anything like this is horrendous. When any person does anything like this, and it should never be supported. The issue is people are ideologically tilted, inclined
and they don't care about these things. But I think they should. Okay, let me just read a couple of chats. Indian mentality: commit less, deliver more. Not necessarily. To be honest, not necessarily. क्यों नहीं तो बढ़िया था. ये तो बताओ नीलेश भाई कि YouTube रिव्यू नहीं करता अगर फेयर यूसेज में. YouTube doesn't have enough time. It's all automated. YouTube doesn't have enough time. If YouTube has recognized कि इस चीज़ का कंटेंट का कॉपीराइट होल्डर ये पर्सन है, देन और उस पर्सन के पास नोटिफिकेशन जाएगी इसने तुम्हारा चीज़ यूज़ करी है. इफ़ दे ऐड द कॉपीराइट स्ट्राइक, द कॉपीराइट स्ट्राइक इज गिवन. उसके बाद तुम जाके उस कॉपीराइट स्ट्राइक को वो कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हो कि ये गलत तरीके से डाली गई है कॉपीराइट स्ट्राइक. लेकिन अगर तुम्हारा क्लेम is proven to be wrong, then your channel might get deleted. So you wouldn't really want to do it. The legal battle is there, but again, there's no point on going against a legal battle against someone as big as MTV or whoever the fuck these people are, right? Yeah, this is fucked up. So no, I think I'm gonna make a clip out of it and upload it, even though I don't think I've provided any of the fucking content value. But maybe the title and thumbnail, I don't know. You know, because people end of the day care about these things like, oh, इस चीज़ के ऊपर इतने लोगों ने वीडियो बनाई, तो it must have been a big thing. So yeah, I probably will. एक दो चीज़ें बची हैं. इस बार इशू क्या है पता नहीं, बट पहले भी MTV के साथ उसके पंगे हुए थे when he criticized the show. These people are so fucking egotistical, dickheads. आपके पे कितनी लग गई? मेरे पास अब तक एक भी नहीं लगी है. मेरे पास मेरी हर स्ट्रीम कॉपीराइट क्लेम्ड होती है, यानी कि आई जनरली डोंट मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ स्ट्रीम्स. खैर वो व्यूज़ वगैरह पे वो नहीं है, राइट. लेकिन बेसिकली क्या होता है, अगर मैंने कोई वीडियो बनाई है जिस पे कॉपीराइटेड मटेरियल है और वो चीज़ क्लेम कर दी गई है, तो आई कैन ईदर ट्रिम आउट दैट सेगमेंट, जो कि मैं कई बार कर देता हूँ. मैं तब करता हूँ जब वो स्ट्रीम ब्लॉक हो जाती है, राइट. सो आई कैन ट्रिम आउट दैट सेगमेंट, or any money it makes, or maybe a major chunk of it, I don't know how that exactly works, वो goes to the copyright holder जिसका वो मटेरियल यूज़ करा है. अगर कॉपीराइट आए एंड फिर हम वीडियो डिलीट कर दें तो भी डिलीट हो जाएगा चैनल. यस, इट्स डिफरेंट. एक होता है कॉपीराइट क्लेम कि श्वेताब ने लेट्स से मेरी स्ट्रीम पे कॉपीराइट क्लेम डाल दिया कि मैंने श्वेताब की वीडियो देखी एंड वो क्लेम डल चुका है, राइट. आई look at it and be like, yes, of course, मैंने श्वेताब की वीडियो यूज़ करी है. I think it's fair use. I'm talking about it a lot. I'm criticizing the ideas. Or adding on to the ideas. So that's a copyright claim. लेकिन at the same time, श्वेताब can give me a copyright strike. और copyright strike जो है वो 3 तक हो सकती हैं, और एक strike I think 6 महीने तक रहती है. और it used to be like this. I'm not sure करंट सीन क्या है. तो इट यूज टू बी लाइक दिस कि 6 महीने तक एक स्ट्राइक रहेगी. अगर उस पीरियड में एक 2 और स्ट्राइक आ जाए, योर चैनल इज फकिंग डिलीटेड. नाउ अब मेरे पे आज कॉपीराइट स्ट्राइक आई, राइट. आज से 6 महीने के पीरियड वो स्ट्राइक रहेगी इवन इफ आई डिलीट दैट पर्टिकुलर वीडियो. तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे अगर 2 स्ट्राइक्स और आ जाते हैं, चैनल इज फकिंग डिलीटेड ऑटोमेटिकली. सो आई डोंट नो उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक्स करी हैं, क्लेम करा, एग्जैक्टली क्या चल रहा है. Yeah, so it's kind of fucked up. It's a way to fuck the creators, because again, YouTube would rather be with the big brands rather than individual creators, right? Please check Discord. I will. Holy fucking shit, what the fuck? Oh, wait. What the fuck is this? I don't know what to make of this. I mean, you did some effort. Okay, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक नहीं, you drew this beforehand and then you wrote hello Nilesh. How I know that because इस एक मार्कर से ड्रॉ करा गया और पेन से लिखा गया है. Yes, I do have some sus people in chat. I don't know what the fuck is happening. I know. What the fuck? I drew it just now. Marker से लिखा नहीं जाता टिश्यू पेपर पे. See, and that's how that's why I don't doubt you being a girl, because a guy just wouldn't give a fuck. वो गंदा सा बड़ा बड़ा लिख देगा ना, hello नीलेश. पहली बात तो no guy would fucking do this, right? मेरे पे लोकेशन शेयर करके आना घर पे. True.
I cannot do a meetup. I'll be fucking dead, dude. अभी तमिल और तेलुगु मूवीज में एसोसिएशन बनाकर मूवी को फर्स्ट 3 days में रिव्यू एंड पब्लिक ओपिनियन वीडियो नहीं बना सकते, ऐसी अपील करी है कोर्ट. What the fuck? So we're gonna keep making shitty movies and charge you for it. You better not fucking review it. हमारी पिक्चरें चलने दो, हम कितनी ही टट्टी बनाते रहें. That's what it basically means, right? यो बिंद्रा साहब, क्या हाल है बड़े दिनों बाद? कौन तो तू तो? How are you, man? Fucking hell, dude. Malika Hind, what the fuck? I don't know what to make of this. Like, okay, and to be honest, I was trying to ignore it, but I think I should just say it out in the open. My claim about the closeted trans kid still stands. And yes, pun intended. All right? I'll just say that. You make of that what you mean. I mean, it could go either way right now, the way things are. अरे टट्टी से याद आया, पुष्पा 2 आ रही है परसों. Nice. I fucking love my chat, dude. Hourglass बनाया है. हाँ bro, that's no wonder Joffrey thinks that. भाई एक मीटअप तो बनता है नीलेश भाई का. यार nobody lives around. अगर तुम सारे लोग फरीदाबाद के होते ना तो चलता, दिल्ली के होते चलता, fucking मुंबई के होते चलता अगर मैं कभी आ रहा हूँ तो, राइट? नीलेश आने वाला है आज. यार मैं रोज लाता हूँ भाई, आज क्या स्पेशल है? मलिका हिंद गुड्डा बनाया होता तो अच्छा रहता. All right. Am I missing anything on Discord or Discord?